Good morning, children. Today in this video, we will continue the chapter The Shoemaker. Yesterday, let's recall what we have studied till now. The shoemaker who was in prison for 18 years, now he is released, but he has forgotten all his past life. Okay, he has forgotten everything about his past memories. He doesn't know his name. He doesn't know what was his trade. Now, Mr. Lorry and Mr. Defarge, both are trying to recall all his memories. They are asking different and different things. His daughter, Lucy, is also standing behind the door and she was watching all this drama. Okay, now when Mr. Lorry and Defarge asked the shoemaker about his name, he replied, uh, 105 North Tower. He told his name 105 North Tower. It was seeming very strange, but he pronounced his name with a weary sound that was not a sigh nor a groan. That means he was not feeling any kind of deep sad, and after telling his name he went to work again. अपना ये इतना लंबा चौड़ा नाम बता के वो अपने काम में फिर से बिजी हो जाता है. Until the silence again broken. जब तक कि साइलेंस फिर से ब्रेक नहीं होता, वो नाम बताकर अपना और अपने काम में लग जाता है. You are not a shoemaker by trade, said Mr. Lorry, looking steadfastly at him. Mr. Lorry उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम बाय ट्रेड शूमेकर नहीं हो. His haggard eyes turned to Defarge as if he would have transferred the question to him, but as no help came from that quarter, they turned back on the questioner when they had sought the ground. I am not a shoemaker by trade. No, I was not a shoemaker by trade. I learned it here. I taught myself. I asked leave to. Here, when Mr. Lorry says कि तुम by trade shoemaker नहीं हो, तो shoemaker डेफार्ज की तरफ देखता है, जैसे कि उसने ये क्वेश्चन उसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया कि तुम बताओ, उसका जवाब तुम दो. हिज हैगर्ड आईज, हैगर्ड मीनिंग एग्जॉस्टेड एंड डिस्ट्रॉट. एग्जॉस्टेड, उसकी आंखें डेफार्ज की तरफ टर्न हो जाती हैं और ऐसा लगता है वो डेफार्ज से आंसर की उम्मीद करता है, लेकिन जब उसको कोई हेल्प नहीं मिलती, दे टर्न बैक ऑन द क्वेश्चनर व्हेन दे हैड सॉट द ग्राउंड. जब दोनों क्वेश्चनर, क्वेश्चनर कौन है? मिस्टर लॉरी. अब जब व्हेन दे हैड सॉट द ग्राउंड, सॉट जब वो नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ देख रहे थे. आई एम नॉट ए शू मेकर बाय ट्रेड. हाँ, मैं शू मेकर नहीं हूँ बाय ट्रेड. नो, आई वॉज नॉट ए शू मेकर बाय ट्रेड. मैं शू मेकर था भी नहीं. आई लर्न इट हियर. आई टॉट माई सेल्फ. हियर, हियर मीन्स जैसे ही वो बोलता है आई लर्न इट हियर, अगेन ही लॉस्ट इन हिज डीप थॉट्स. बार बार वो अपने डीप थॉट्स में खो जाता था. आई टॉट माई सेल्फ, मैंने सब कुछ अपने आप सीखा है. आई आस्क लीव टू. आई आस्क लीव टू, और इतना कह के फिर से अपने थॉट्स में खो जाता है. ही लैप्स्ड अवे even for minutes, bringing those measured changes on his hands the whole time. He lapsed away. मतलब lapsed means भूल जाना, no longer valid. वो बार बार भूल जाता था, even for minutes, कुछ ही टाइम के लिए. Bringing those measured changes on hands the whole time. बार बार भूल जाता था और फिर से वही उसके हाथों के एक्शंस स्टार्ट हो जाते थे. Where were we? Here. His eyes came slowly back at last to the face from which they had wandered. When they rested on it, he started and resumed. His eyes came slowly back. Slowly back का मतलब at last. उसकी आंखें जब वो वापस कहीं खो जाता है तो उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं. आखिर फिर उसकी आंखें वापस वहीं आती है. टू द फेस फ्रॉम विच दे हैड वॉन्डर. उस फेस से, यानी मिस्टर लॉरी और डेफार्ज के फेस से वो अपनी आंखें इधर उधर कर लेता. जब वो वापस उनके ऊपर सेट होती हैं, when they rested on it, he restart, that means he restarted his work and resumed in the manner
of a sleeper, that moment awake, reverting to a subject of last night. और इस तरीके से वापस आती है कि जैसे एक सोया हुआ आदमी जागता है और वो अपनी रात को जिन सपनों में खोया था उनके बारे में एकदम से सोचने लग जाता है. रिवर्टिंग टू अ सब्जेक्ट ऑफ लास्ट नाइट, दैट मीन्स रिवर्टिंग मीन्स रिटर्निंग, मतलब वापस आ जाता है सुबह उठ के कि भाई रात को मेरे साथ क्या क्या हो रहा था सपने. इस तरीके से वो बिहेव करता है. I asked leave to teach myself and I got it with much difficulty after a long while. ये सब मैंने यहीं सीखा है बहुत मुश्किल से और बहुत टाइम लगा. And I have made shoes ever since. As he held out his hands for the shoe that had been taken from him. वो अपना हाथ मिस्टर लॉरी के हाथ में जो शूज था वो लेते हुए कहता है कि मैंने यहीं पर ये सब कुछ सीखा है. मिस्टर लॉरी said, still looking steadfastly in his face, Monsieur Manet, do you remember nothing of me? अब मिस्टर लॉरी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं शू मेकर की तरफ, क्या मिस्टर मॉन्शर मैनेट, मॉन्शर मैनेट कौन है? मिस्टर मैनेट द शू मेकर, क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? डू यू रिमेम्बर नथिंग ऑफ मी? द शू ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड ही सेट लुकिंग फिक्सली एट द कुशनर. उसके हाथ से शूज नीचे गिर जाता है ग्राउंड पर और वो कुशनर यानी मिस्टर लॉरी की तरफ देखता है. मॉन्शर मैनेट, मिस्टर लॉरी laid his hand upon Defarge's arm. Do you remember nothing of this man? अब मिस्टर लॉरी डिफार्ज के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि आपको क्या ये आदमी बिल्कुल याद नहीं है? लुक एट हिम, लुक एट मी. इज देयर नो ओल्ड बैंकर, नो ओल्ड बिजनेस, नो ओल्ड सर्वेंट, नो ओल्ड टाइम राइजिंग इन योर माइंड, मॉन्शर मैनेट? वो सब कुछ पूछते हैं उससे कि आपको पुराना कोई बिजनेस, कोई सर्वेंट, कोई टाइम कुछ दिमाग में नहीं आ रहा आपके, मॉन्शर मैनेट? As the captive of many years. Now, students, read this line carefully. As the captive of many years. That means he was kept in jail. Sat looking fixedly by turns at Mr. Lorry and at Defarge. Some long, obliterated marks of an actively intent intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. These lines very important, and these lines show that he was in prison as a captive of many years, क्योंकि वो बहुत साल तक जेल में थे. sat looking fixedly, वो बिल्कुल फिक्सली देख रहे थे. बाय टर्न्स मतलब टर्न बाय टर्न, कभी मिस्टर लॉरी की तरफ, कभी डिफार्ज की तरफ. सम लॉन्ग obliterated marks of an actively intent and intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. मतलब मिस्टर लॉरी और डेफार्ज को बार बार देख रहे थे शूमेकर, टर्न वाइज बाय टर्न. कुछ बहुत पुराने obliterated marks means vanished. Here it is also given in your book blotted out, that has been जो obliterated marks यानी उनके फेस पे जो मार्क्स हैं, फेस पे मार्क्स क्या, कभी उनके फेस पर दिखाई देते हैं कुछ मार्क्स जब वो अपनी स्किन को, फॉरहेड को वो सोचते हैं. एक्टिवली इंटेंट इंटेलिजेंस इन द मिडिल ऑफ द फॉरहेड, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे माथे के बीच में ऐसे हमारी स्किन इकट्ठी हो जाती है, तो बार बार वो मार्क्स दिख रहे थे, कभी गायब हो रहे थे. gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. वो उनको ग्रेजुअली फोर्स themselves मिस्टर लॉरी डिफार्ज के लिए यूज किया गया है कि उनको फोर्स कर रही थी थ्रू द ब्लैक मिस्ट यानी यहाँ पर वो अंधेरा जो उसके लाइफ में छा गया है, शू मेकर की लाइफ में. देवर ओवर क्लाउडेड अगेन, ऐसा लग रहा है कि वो फिर से डार्क और ग्लूमी हो गए हैं. देवर फेंटर, देवर गोन, बट दे हैड बीन देयर, यानी वो जो मार्क्स हैं उसके चेहरे पर, उसके माथे पर बार बार दिख रहे हैं, फेंट हो रहे हैं और जा रहे हैं, बट दे हैड बीन देयर, लेकिन वो वहीं थे. एंड सो एग्जैक्टली वॉज द एक्सप्रेशन रिपीटेड ऑन द फेयर यंग फेस ऑफ हर यूज किया गया, हु हैड crept along the wall to a point where she could see him.
and where she now stood looking at him with hands which at first had been only raised in frightened compassion, if not even to keep him off and shut out the sight of him, but which were now extending towards him, trembling with eagerness to lay the spectral face upon her warm young breast and love it back to life and hope. So exactly was the expression repeated on her fair young face, that it looked as though it had passed like a moving light from him to her. अब यही सेम एक्सप्रेशन जो उसके फेस पर दिखाई दे रहे थे हमें शू मेकर पे, अब किसके फेस पे सेम एक्सप्रेशन उसके ऊपर दिखाई दे रहे थे जो दरवाजे के पास दीवार से लग के खड़ी थी. नाउ द शू मेकर्स डॉटर लूसी हैड बीन इंट्रोड्यूस हियर. हर इज यूज फॉर लूसी हु was standing behind the door, जो विच विद एंड वेयर शी नाउ स्टूड लुकिंग एट हिम. अब वो जो उसको खड़ी हुई देख रही थी विद हैंड्स विच एट फर्स्ट हैड बीन ओनली with hands which had been sorry in frightened compassion, यानी उसके हाथ उसको बड़ी फ्राइटेंड कंपैशन, डरा डर भी फील हो रहा था लेकिन बहुत दया भी आ रही थी उसको अपने फादर को देख के. इफ नॉट इवन टू कीप हिम ऑफ, इफ नॉट इवन टू कीप हिम ऑफ एंड शट आउट द साइट ऑफ हिम. ऐसा लग रहा था कि वो उसके पास जाने से उसे रोका भी गया है, बट विच वर नाउ एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स हिम, लेकिन वो उससे रुका नहीं जा रहा और वो उसकी तरफ बढ़ रही है. ट्रेम्बलिंग विद ईगरनेस, उसको बहुत क्यूरियोसिटी भी हो रही है. To lay the spectral face upon her warm young breast. To lay the spectral means ghostly, यानी शू मेकर का फेस अब बहुत गोस्टली हो गया है क्योंकि उसके ऊपर इतने जुल्म हुए जेल में. अब वो उसका उसका सब कुछ उसका लुक चेंज हो गया है. एंड लव इट बैक टू लाइफ एंड होप, वो चाहती है उसके पास जाए और उसको वापस उसी लाइफ में उम्मीद वाली जिंदगी में वापस लाए. सो एग्जैक्टली वॉज द एक्सप्रेशन रिपीटेड ऑन हर फेयर यंग फेस. ये सेम एक्सप्रेशन उसके ऊपर आ रहे थे. दैट इट लुक्ड एज दो इट हैड पास लाइक ए मूविंग लाइट फ्रॉम हिम टू हर. ऐसा लग रहा था एक रोशनी है जो उसकी तरफ से उस शू मेकर की तरफ से उसकी तरफ बढ़ रही है. डार्कनेस हैड फॉलन ऑन हिम इन इट्स प्लेस. अब इवनिंग टाइम हो गया था, बहुत देर बहुत शाम हो गई थी. अंधेरा उसकी जगह पर आ गया था, यानी रूम में अंधेरा भी हो रहा था. ही लुक्ड एट द टू मीन्स मिस्टर लॉरी और डेफार. उसने उन दोनों को देखा. शू मेकर लुक्ड एट द टू लेस एंड लेस अटेंटिवली, बिना किसी अटेंशन के. एंड हिज आईज इन ग्लूमी आपको पता है सैडनेस होता है, और एब्स्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस, इनअटेंटिवनेस. सॉट द ग्राउंड, यानी उसने उन दोनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जमीन तक की तरफ देखता रहा. एंड लुक्ड अबाउट हिम इन द ओल्ड वे, और जिस तरीके से वो किया करता था जमीन की तरफ देखकर अपनी आईज को वॉन्डर करता था. फाइनली विद अ डीप लॉन्ग साई ही टुक द शू अप एंड रिज्यूम्ड हिज वर्क. फिर एक लंबी सांस भरते हुए उसने शूज जो जमीन पर गिर गया था उसे उठाया और अपने काम में फिर से लग गया. हैव यू रिकॉग्नाइज्ड हिम मॉन्शर, आस्क्ड डेफार्ज इन ए विस्पर सॉरी, डेफार्ज धीरे से कहता है कि मॉन्शर बेनेट, क्या तुमने इनको नहीं पहचाना, यानी मिस्टर लॉरी को. Yes, for a moment at first I thought it quite hopeless, but I have unquestionably seen for a single moment the face that I once knew so well. Hush, let's draw further back. Hush. अब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिखता है कि शू मेकर कहता है हाँ थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस फेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ. लेट्स ड्रॉ फर्दर बैक, यानी अब क्या करना है इसको याद करके, छोड़ो, जाने दो, लेट इट गो. इस तरीके से वो इजीली लेता है. शी हैड मूव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द गैरेट very near to the bench on which he sat. She had moved. Now Lucy entered the garret और उसी बेंच पर बैठ जाती है जहाँ पर वो बैठा होता है शू मेकर. There was something awful in his unconsciousness of the figure that could have put out its hand and touched him as he stooped over his labor. Stooped over his labor. अब जैसे ही वो उसके पास आकर बैठती है कुछ अनप्लीजेंट सा फील होता है शू मेकर को.
awful in the unconsciousness of the figure. फिगर किसके लिए यूज किया गया है? शू मेकर के लिए. फिगर यानी अनईजी सा फील करता है. दैट कुड हैव पुट आउट इट्स हैंड एंड टच्ड हिम एज ही स्टूप्ड ओवर हिज लेबर. वो जैसे ही अपने काम में लगता है, स्टूप्ड ओवर मीन्स बेंट ओवर, यानी वो अपने काम में झुका हुआ है और वो उसको टच करने की कोशिश करते हैं. नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन, नॉट अ साउंड वॉज मेड, शी स्टूड लाइक अ स्पिरिट beside him and he bent over his work. ना तो एक वर्ड बोला गया, ना कोई आवाज हुई. वो एक स्पिरिट की तरह उसके पास खड़ी रही, बेंच के पास, और वो अपने काम में लगा हुआ. It happened at length that he had occasion to change the instrument in his hand. It happened at length, after a long time. At length means after a long time that he had occasion to change the instrument in his hand for his shoemaker's knife. अभी वो शूज बना रहा था, तो अब शूज पे जो काम कर रहा था उसने अपना टूल चेंज करना था. उसने उसको अपना टूल चेंज करना था. तो टूल चेंज करने के लिए उसने नाइफ उठाया, शू मेकर वाला नाइफ. इट ले ऑन दैट साइड ऑफ हिम विच वॉज नॉट द साइड ऑन द विच शी स्टूड. जहाँ पर लूसी खड़ी हुई थी उसकी दूसरी साइड रखा था. ही हैड टेकन इट अप, उसने उसको उठाया, एंड वॉज स्टूपिंग टू वर्क अगेन, और फिर से अपने काम में लग गया. व्हेन हिज आईज कॉट द स्कर्ट ऑफ हर ड्रेस, जब उसकी आंखें उसके स्कर्ट की तरफ जब वो झुका तो पड़ी. ही रेज्ड हिज एंड सॉ हर फेस, अब उसने अपनी आंखें उठाई और उसको देखा. द टू स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड फॉरवर्ड नहीं है, स्टेयर्ड होना चाहिए. स्टार्टेड फॉरवर्ड यानी एक दूसरे को देखते रहे, बट शी स्टेयर्ड देम विद द मोशन ऑफ हर हैंड. शी हैड नो fear of his striking at her with the knife, though they had. उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि वो उसके पास खड़ी थी, शूमेकर के हाथ में नाइफ था. वो अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं था, कुछ भी हो सकता था, बट शी वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल बिकॉज शी वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ हिम. He stared at her with a fearful look, and after a while his lips began to form some words, though no sound proceeded from them. वो उसकी तरफ देखता रहा फियरफुल लुक की, और कुछ देर बाद उसके होठों पर कुछ शब्द आने लगे, वर्ड्स कुछ बोलने लगा, जबकि उनमें कोई साउंड नहीं थी. दो नो साउंड प्रोसीडेड फ्रॉम देम. प्रोसीडेड मीन्स कोई आवाज नहीं आ रही थी जो वो बोल रहा था, बस वो बड़बड़ा सा रहा था, उसके लिपसिंग कर रहा था, लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रही थी. कुछ ना कुछ तो उसको फील हुआ कि भाई वो कौन है. हो सकता है अनकॉन्शियसनेस में. Abhi, these are the questions. I hope the chapter is clear to all. It was very heart-touching story when a father and a daughter was meeting after a long time, and father is not able to recognize the daughter, but the daughter was eager to meet her father. She was feeling very pity for her father. These are the questions, and here are the answers of all the questions. You can see and can note down all the answers in your notebook. Thank you. Have a nice day.